ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਵਕਤ 'ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ, ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ। ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੁਆਰ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਇਆ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਲਾਨ ਹੈ। अकाल चढ़ाई है एक अवघट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कबीर। वर्तमान तो अगे चढ़ाई है, थले ढलान है। जैसे निवाण विच पानी अपने आप जाता है, पर चढ़ाइयां ते बिना प्रैशर तो नहीं जाएगा। मन काल दे अपने आप जाता है, बैठा बैठा भी काल दे भज रहा है, दौड़ रहा है, ढलान है। किसी की प्रेरणा की लोड़ नहीं, कोई साधना की लोड़ नहीं, मन आपे ही जाता है, जैसे पानी आपे ही जाता है ढलान की तरफ। पर चढ़ाइयां की तरफ पानी आपे नहीं जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा। काल ते अकाल, वक़्त समय ते समय तो रहत अवस्था, इहदे विचकार है वर्तमान। अगर उतों कोई लंघ जाए तो अंतरीव तीरथ ते पहुंच जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं, संसार ते आया होया सफल हो जाता है। जितने चिर तक मनुख काल दे च है, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, हसदा रहेगा, रोंदा रहेगा, सुखी होवेगा, दुखी होवेगा, किसी वक्त खुश होवेगा, किसी वक्त बेहाल बेचैन होवेगा, किसी वक्त नफे करके प्रसन्न होवेगा, किसी वक्त नुकसान दे नाल दुखी होवेगा। क्योंकि काल दे च दोवें ने, काल दे च एक नहीं है। काल दे च जन्म भी है, मरण भी है, सुख भी है, और हर सुख दे पिछे दुख है। जिवें एक सिक्के दे दो पहलू होंदे ने, बस इस तरह काल दे च दो ने, एक नहीं है। भगत दो तरह दे होए ने। एक ते ये कहंदे ने प्रभु नूं असी सुख नहीं मंगदे। क्यों? कबीर कहंदा नहीं चाहिए मैनू सुख। सुख लई मनुख पता नहीं कितने यतन ते वसीले जुटांदा है। कबीर कहंदा नहीं चाहिए। हे प्रभु, कम से कम मैं तेरे कोलों सुख ते नहीं मंगदा। क्यों? सारे ही सुख मंगदे ने, ऐसा तो कोई भी नहीं जो सुख ना मंगे। तुसी प्रभु कोल सुख क्यों नहीं मंगदे? कबीर कहंदे मैनू समझ आ गई है। की समझ आई है? सुख मांगत दुख आगल आवे, सो सुख हमू ना मांगया भावे। जितना सुख मिलीए नाल दुख अपने आप आ जाता है, बिना मंगे ही आ जाता है। इज्जत दे नाल बेइज्जती आ ही जाती है, नफे नाल नुकसान आ ही जाता है, जन्म दे नाल
ਮਰਨ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਲਓ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਉਤਨਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਾਲ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਦੂਜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਕਾਲ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂ, ਸਾਡਾ ਘਟ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਆਉਣਗੇ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੋ ਰੰਗੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੌਤ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂ? ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨੇ, ਜਨਮ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਬੁੱਢੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੇ 60 ਦੇ ਨੇ, 45 ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ 70 ਦੇ ਨੇ, 50 ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ 40 ਦੇ ਨੇ, 30 ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦੀਆਂ। ਜਵਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਕਾਲ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ।
ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਛਿਨ, ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਦਮ। ਇੱਕ ਚਿਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ बीच ਨਾ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਚੌਪਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਣ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਦਮ। ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਦਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਭੁਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਵਰਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਤ ਗਈ ਦੀ ਯਾਦ ਪਈ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਹਿਮ ਪਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਤੜਫਾਵੇ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਸਨ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ। ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਨ ਵਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਤਨ, ਵਰਤਨ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕਦਮ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕਦਮ ਸਮਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਮੌਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇੱਕਦਮ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ।
जो दम लंघ गए वो तो खर्च हो गए, वो तो कोई नहीं ये कोल। ते जेड़े दम आवने ने हथ दे कोई नहीं अजे, वो जेब दे च नहीं ने। जेड़े दम आए नहीं ये वरत नहीं सकता, जेड़े दम चले गए ये वरत नहीं सकता। केड़ा दम वरत सकता है? एक जो मूंह दे च, इनू ही वरत सकता है। इसे नूं नंद लाल कहंदे ने, यकदम बखेश रा न बुरदम कि कीसतम ऐ वाए नकदे जिंदगी राय गां गुजस्त। इस पौड़ी ते मैं इस वास्ते इतना समा लाया है, इनू जद मैं लिखती रूप दिता सी गालबन 100 सफियां च भी पूरा नहीं कर सकिया सी। ते बहुतियां दे प्रश्न आउंदे सन, अंतरीव तीरथ फिर की है? अंतरीव तीरथ वो किसी शहर दे च नहीं है, किसी मुल्क दे च नहीं है। उथे पहुंच जाइए तो इशनान करिए तो पाप धुल जान, नहीं, अंतरीव तीरथ अंदर ही है और हर एक दे अंदर है, घट घट दे च है। पर मनुख नूं अज तक जो कुछ भी मिले है बाहर मिले है, ते बाहर मिले है कर करके मिले है। मैं फिर दोहरावां, मनुख नूं अज तक जो कुछ मिले है बाहर मिले है, परिवार मिले है, पदार्थ मिले ने, मान सन्मान मिले है, बाहरों मिले है और कर करके मिले है। ये सोचदा है शायद परमात्मा भी बाहरों मिले तो कर करके मिलेगा। अगर मेरे कीते हुए नाल, मेरे कुछ करन नाल मैनू परमात्मा मिलता है, परमात्मा कतई वड्डा नहीं, मेरा करना वड्डा है, जो मैं कीता है वह वड्डा है। जिस पैसे नाल बाजार च मैनू चीज मिल गई वो चीज इतनी वड्डी नहीं, मेरा दिता होया पैसा वड्डा है। मेरा कर्म महान है जिहदे नाल मैनू परमात्मा मिल गया। परमात्मा थोड़ी महान है, कोई भी मनुख उतने कर्म करेगा रब मिल जाएगा। हुण मैं फिर अर्ज करा, कर करके नहीं मिलेगा। या कर करके मिल सकता है तो चलो कोई एक अद बंदा लभ लो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ कर करके खेड कुछ बनी है? बड़ा पाठ कीता होवेगा, बड़ी सेवा कीती होवेगी, बड़ा दान पुण्य कीता होवेगा, तो बड़ा कुछ कीता होवेगा और धार्मिक जगत च लोग करते हैं ना। बहुता मैं हर पहलू नहीं खोलने, इन्ना ही अर्ज करा, कर करके तो किसी को नहीं मिलया, अज तक नहीं मिलया। या मिले है तो कोई दस है कर करके मिले। मैं इतना दान दिता है तो भगवान मिल गए, इतने पाठ कीते ने तो प्रभु मिल गए, इतना सत्संग कीता है तो सत प्राप्त हो गया, ईश्वर मिल गया। फिर कुछ ना करिए, नहीं कर करके पहुंचना है उथे जिथे करना कुछ भी नहीं, अकर्म है, अधर्म है, परमात्मा कुछ भी नहीं करता। तुसी आखोगे इतना वड्डा ब्रह्मंड, इतने सूरज चंद तारे, ये सब कुछ उस तो हो रहा है, वो करदा नहीं, हो रहा है, हो रहा है। जैसे कोई अकाल विच पहुंच जाता है तो इहदा यह मतलब नहीं वो हथ पैर नहीं चलाता, भजदा दौड़दा नहीं, कुछ करदा नहीं है, नहीं, उस तो सब कुछ होंदा है, वो करदा नहीं, करतापन खत्म हो जाता है, करतापन खत्म हो जाता है, होंदा है, उस तो हो रहा है। इसे नूं कहंदे ने कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। निर्मल धर्म अकर्म ते खड़ा है, कर्म ते नहीं खड़ा, कर्म ते मैला धर्म खड़ा है, कर्म ते मैला खड़ा है, क्योंकि कर्म का अहंकार होवेगा, मैं कीता ऐसा ख्याल होवेगा, ये मैला धर्म है। संसार विच लोकां कोल धर्म है मैला,
तो मैला ही करेगा, और की है। इस वास्ते लोकी बाजार दे च भी लड़ते हैं, घर बाहर दे च भी लड़ते हैं, लोकी मस्जिद मंदिरां ते गुरुद्वारियां च भी लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। तो मैं अर्ज करा, करण ते कर दे उत्ते जो धर्म खड़ा है महल है। कर्म करत होवे ने कर्म, करदियां किधरे अकर्म हो जाए। ते हुण मैं अर्ज करा, जिहदा मन एक दम दे च आ गया की करेगा, कितना कर सकता है, किन्ने क कर्म कर सकता है अगर एक दम दे टिक गया। एक चित जै एक छिन ध्यायो, एक छिन दे च, एक दम दे च ते इक्को ही दफा वाहिगुरू कह सकता है। तो मैं फिर दोहरावां, सारे पाप धुलणगे एक दफा वाहिगुरू आखदे, करोड़ दफा वाहिगुरू आखदे नहीं धुलणगे। सारे दुख मिटणगे एक दफा वाहिगुरू आखदे, करोड़ दफा वाहिगुरू आखदे नहीं दुख मिटणगे। करोड़ दफा वाहिगुरू वाहिगुरू आखण दी जाच बंदे नूं आउंदी है, एक दफा कहण दी जाच नहीं आउंदी। एक दफा तो कहना आउंदा है, एक छिन दे च, एक दम दे च। मन उत्थे आवे, मन नहीं आउंदा, मन काल दे च भटकदा है। गुजरे होए काल दियां यादां, आण वाले काल दी चिंता। गुजरे हुए समय दियां यादां, आण वाले समय दी चिंता। गुजरे हुए दमां दियां यादां, उन्हां दमां दे च कुछ मिलिया सी, कुछ बिछड़िया सी, यादां ने। आण वाले दमां दी चिंता है भी इन्हां दमां च कुछ मिले, बिछड़े ना। आण वाले समय दी चिंता और गुजरे हुए समय दियां यादां दा बोझ हर वक्त मनुख दे सिर ते आउंदा है, मनुख दबिया हुंदा है। जे किधरे वर्तमान दे च आ जाए ते हौला फुल हो जाता है और कुछ गुणां दी महक निकलनी शुरू हो जाती है। भगती गुणां ते खड़ी, इसे पौड़ी जिक्र आएगा, गुणां ते खड़ी है ते गुण महक ने, सुगंध ने। हुण इत्थे एक प्रश्न खड़ा होवेगा, जे अकाल परमात्मा है, परम आनंद है, परम जीवन है, जिस विच मौत नहीं है, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत न जन्म जरा। साहिब कहते हैं हुण असी अपना मकान उत्थे बनाया है जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं, बुढ़ेपा भी कोई नहीं, गल खत्म। ते हुण पुछिए बाबे नूं, महाराज असी भी फिर उत्थे ही मकान बनांदे, नानक बद्धा घर तहां, असी अपना घर उत्थे बनाया। किथे बनाया? जिथे मिरत ना जन्म जरा, जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं और बुढ़ेपा भी नहीं है। वर्तमान विच आउंदियां जीवन की लालसा मिट जाती है, मरण का भय मिट जाता है। जब जीवन की लालसा खत्म हो गई, मरण का भय खत्म हो गया, ये मनुख जन्म मरण तो निकल गया। जीवन की लालसा है बड़ी प्रबल, ते मरण का भय उतना ही होवेगा, कितना? जितना जीवन की लालसा होवेगी। ये ते काल दे च है। ते काल दे च सिर्फ सुख नहीं, दुख भी है। जितने वड्डे सुख उतने ही वड्डे दुख, जितने छोटे सुख उतने दुख भी छोटे। फिर मनुख काल दे च क्यों रहिंदा है? कहंदे ने वासना करके रहिंदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जाए। आसा दीवार दे श्लोक का खुलासा किया है भाई गुरदास जी ने।
इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं कुंजी कहते हैं। बहुत सारे शब्द जो पढ़ते हैं समझ च नहीं पै सकते सन, उस जमाने भाई गुरदास जी ने खोले सन। नानक मेर शरीर का एक रथ वाओ, उसका खुलासा करते हैं भाई गुरदास। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई सूझवान होवे, ज्ञानी होवे ते उहदी समझ च आए। बार बार आउणा आउंदा है वासना करके, ते वासना किस दी आउंदी है? जो नहीं है। जो है उहदी वासना नहीं आउंदी, वो तो है ही। जो कुछ है उसकी वासना खत्म हो जाती है, फिर भी वासना होती है, क्योंकि हुण भी कुछ ऐसा है जो नहीं है। 10 मुल्क जितण तो बाद सिकंदर दे नाल जो चल रहा सी एक साधु फकीर, उन्हें कहा हुण बस कर चलीए। कहंदा नहीं, अगले मुल्क जितने। वासना हमेशा उसे दी आउंदी है जो नहीं है, जो नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है, हर एक को, हर बशर को। चाहे आम साधारण बंदा है, चाहे मुल्क का हुक्मरान है, चाहे आम मूर्ख है या महान गुणवान है, निर्धन है धनवान है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है। बहुत कुछ ऐसा होवेगा जो नहीं है, ये भी महज करते हैं। और वासना किस दी आउंदी है? जो नहीं है। फिर वासना दे केंद्र 3 मन्ने ने, बुनियादां 3 मनियां ने। ध्यान नाल सुनना, इसनूं अर्ज करके फिर मैं पौड़ी दे अर्थ करके समाप्ति करांगा। और इस समाप्ति भी मजबूरी च मैं कर रहा, इस पौड़ी च बड़ा कुछ छुपिया था। कोशिश मेरी यही सी कि कम से कम अंतरीव तीरथ दी ते पूरी समझ आ जाए, इस वास्ते मैं इन्ने दिन लाए ने। तो किधरे इस तरह का भी नहीं समझ लेना कि मैं हंकार प्रगट कर रहा, मैनू भी सिर्फ समझ आई है, तीरथ ते पहुंचे मैं कोई नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, समझ जरूर आई है। चलो इतना हंकार मैं थोड़े सामने प्रगट कर दें। 45 साल कथा कर करके इतनी समझ आई है कि एक दफा वाहिगुरु आखदे सारे गुनाह मिटणगे, करोड़ दफा आखदे नहीं मिटणगे, नहीं मिटणगे। इतनी समझ जरूर आई है। जन्म मरण मिटेगा अकाल विच पहुंचदे हैं, काल विच रहिंदे हैं नहीं। गुजरे हुए समय दियां यादां, आने वाले समय की चिंता, कि जमदा रहेगा मरदा रहेगा, जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्मे। दुख भोगण लई जन्म ते चाहिदा, जीवन ते चाहिदा। जन्म ही नरक है, जीवन ही नरक है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। स्वर्ग अकाल है, काल दे च नहीं है स्वर्ग, इस चक्कर च ना पैना। काल विच सहूलतां आउंदियां ने, सहूलतां नूं मनुख सुख कह दिंदा है। और ऐसे सुख जिन्हां दे पिछे दुख ने। मैं हुणे ही अर्ज कीती है, ये 2 तरह के भगत ने। एक कह रहा है नहीं ये सुख चाहिए, कबीर कह रहा है। क्यों कह रहा है? सुख मांगत दुख आगल आवे, जितना सुख मिलता है उतना ही नाल दुख मिलता है, उतना ही दुख मिलता है। कल्ला सुख है ही नहीं। आम मनुख दी ते यही समझ है ना, कल्ला सुख होंदा है, नहीं होंदा। अगर कोई ऐसा समझदा पिया तो गलत समझदा पिया। ये मैं अर्ज करते हैं, कल्ला सुख नहीं होंदा, सुख दे पिछे दुख होंदा है। कल्ला जन्म नहीं होंदा, जन्म दे पिछे मरण होंदा है। जे रोज रोज मनुख जी रहा है तो मैं अर्ज करा रोज रोज मर भी रहा है। ये दोवें इकट्ठे ही भोग रहे। तुसी आखोगे रोज रोज किस तरह मर रहे हैं? एक उदाहरण दें, 5 साल का बच्चा है,
ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਸਨੇ 70 ਸਾਲ ਜੀਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਘਟ ਗਿਆ। जननी जानत है सुत बड़ा होता है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। एक दिन ते घट गया। हुण कबीर दा पैमाना अलग है, नाप तोल अलग ने उहदे। आम जगत दा अलग है भी ये ते वड्डा हो गया बच्चा। कबीर कह रहे छोटा हो गया। वड्डा भी हुंदा जा रहा है, छोटा भी हुंदा जा रहा है। मनुख जी भी रहा है, मर भी रहा है, वध भी रहा है, घट भी रहा है। ऐसा कोई वधना नहीं है जिहदे च घटना नहीं है। छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट जाओ पानी। बस इत्थों ही ले लो। अगर जीवन रोज रोज वध रहा है तो रोज रोज नाल घट रहा है, बाकी सब कुछ दे नाल यही नुकता जोड़ लेना। सब कुछ दे नाल कुछ भी होवे उहदे नाल यह नुकता जोड़ लेना। वध रहा है, घट रहा है, ये दोवें इकट्ठे ही चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते, इकट्ठे ही चलते। मान सन्मान वध रहा है, घट भी रहा है, सदा किसदा रहा है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। इस वास्ते जिन्हां दी समझ ये गल आई है वो काल चों निकलण दी कोशिश करते हैं, यतन करते हैं। तो काल दे च मनुख क्यों रहना चाहता है? काल दी बड़ी पकड़ है, काल दी बड़ी ममता है, समय दी बड़ी ममता है। मनुख समय चो नहीं निकलना चाहता। इतनी ममता है, हर वक्त गुजरे हुए समय दी यादां च बैठा हुंदा है, हर वक्त आने वाले समय दी चिंता च बैठा हुंदा है। बड़ी पकड़, बड़ी पकड़। गुरबाणी कहती है वासना करके। भाई गुरदास जी कहते हैं वासना करके। वासना हमेशा उसदी आउंदी है, किसदी? जो नहीं है। बड़े ध्यान नाल सुनना तुसीं सारे सियाणे सूझवान। उसदी ते वासना हो ही नहीं सकती, जो है वो तो है ही। वासना उसदी आउंदी है जो नहीं है। कि वासना दे 3 केंद्र मन्ने गए ने, 3 बुनियादां मनिया गई ने। वासना दे 3 झरने मन्ने गए, 3 थावां तो निकलदी है। इहदियां 3 बुनियादां ने जिन्हां दे उत्ते इहदा तामीर हुंदी है, उसरदी है। इहनूं इंज कहंदे ने हंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। ये वासना दे 3 केंद्र ने। अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। अहंकार वासना जितनी इज्जत है नहीं होर होवे, जितनी प्रभुता है नहीं। पिंड दे चौधरियां नहीं, पिंड दे चौधरी नाल खेड़ नहीं बनती। MP बन जाइए। अहंकार वासना MP बन गए, इहदे नाल भी गल नहीं बनती। मिनिस्टर बन जाइए। कोई 15-16 साल पुरानी गल है। एक सज्जन दरबार साहब मेरे कमरे च आया, नाल 4-5 गनमैन होर चंगे मिलनसार मनुख होर नाल सन। रस्मी गुफ्तगू तो बाद कहने लगा मस्किन जी अज मेरे लिए अरदास करनी जब दरबार साहब जाओगे। मैं की अरदास करनी है? कहने लगे इस तरह है, MP ते हुण मैं कई दफा रह चुके हैं, छोटी मोटी मिनिस्ट्री भी मिलती रही है, तुसीं अरदास करो चीफ मिनिस्टर हो जावा। मैं किसी होर जगह ते जा। मैनू इस तरह दी अरदासां करनियां आउंदियां नहीं,
और इस दे नाल तैनूं संतुष्टि हो जानी है, ये तेरा ख्याल है। वासना नहीं रुकती। वासना हमेशा उसदी आउंदी है जो नहीं है, जो नहीं है। चीफ मिनिस्टर भी बन जाएगा तो फिर की है, प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, वासना पैदा हो जाएगी। वासना तो हमेशा अगे जाती है, हमेशा अगे जाती है। वो चीफ मिनिस्टर ते ना बनया, लेकिन एक दिन मैनू कपूरथले मिले, कहंदा मस्कीन जी तुसी ठीक कहंदे हो। मैं कहा मेरा आख्या होया ठीक लग्या है, इस तरह लग्या है जिवें लूंबड़ी कहंदी सी अंगूर खट्टे ने, खट्टे ने। उदों तुसी नहीं आख्या सी, उदों तो मेरी गल दा तुसी बुरा मनाया सी। हुण अंगूर खट्टे ने, हन ते मिठे, पर हुण हथ नहीं पहुंचदा, खट्टे ने। वासना हमेशा उसदी आउंदी है जो नहीं है, नहीं है। इस आधार ते इस तरह दीयां फोखियां अरदासां मेरे कोल होईयां नहीं ते कईयां कोल नास्तिक होने का यह इल्जाम मैं लिया है। यह भी मैं अर्ज करा। अहंकार वासना, लोभ वासना, जिन्ना धन है जितना पदार्थ है उते है, वासना उसदी नहीं। वासना उसदी आउंदी जो हुण भी नहीं है। जितनी संपदा है उदी वासना नहीं उते है, जितना धन है उते है। वासना उसदी है जो हुण भी नहीं है, जो हुण भी नहीं है। काम वासना जो रूप नहीं है। और मैं अर्ज करा वासना किसी थां ते भी नहीं रुकती। ना हंकार वासना, ना लोभ वासना, ना काम वासना। 600 बेगमां सन निजाम हैदराबाद दियां। क्या वासना रुक गई सी? वासना ते नहीं रुकी, जिंदगी खत्म हो गई सी उहदी वासना दे च। 400 महाराणियां सन महाराजा पटियाला दियां। क्या वासना मिट गई सी? नहीं, खुद मिट गया। महाराजा पटियाला मिट गया, वासना थोड़ी मिटती है। वासना ने फिर जन्म दिता होगा। वासना बद्दा आवे जाए। कहते शरीर बुढ़ा हो जाता है, वासना नहीं बुढ़ी होती। वासना सदा जवान रहती है। अगर वासना भी बुढ़ी हो जाए तो अगला जन्म नहीं हो सकता। शरीर खत्म हो गया, मर गया, वो वासना ते अगे फिर मां बाप की वासना त्रिवेणी का संगम होकर जन्म हो जाता है, जन्म हो जाता है। वासना ही नहीं रही, अगला जन्म नहीं हो सकता। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ऐसा मनुख अमर जिंदगी नूं प्राप्त कर लेगा। वासना रहिंदी है, शरीर बिरद हो जाता है, वासना बिरद नहीं आती। मेरे नाल इंडिया 3-4 सज्जन ऐसे भी रहे ने, शरीर बिल्कुल ठीक सी, 95-96 साल दे सन। सारे लोग उन्होंने बाबा बाबा करके बुलान, बड़े लंबे दाड़े सन। मेरे नाल दे जिहड़े साथी ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। और सुभाविक मैं उन्होंने कई दफा रोंदा होया देखदा सी। और एक दिन सच्चाई कबूल की भी ज्ञानी जी तुसी ठीक कहंदे हो, शरीर बिरद हो गया, वासना जवान है, वासना नहीं मरती। ये मैं आम पद्धर दे मनुख की गल नहीं कर रहा, ऐसे मनुख की गल कर रहा जो घट तो घट 3-4 घंटे वाहिगुरु मंत्र का जप करदा सी। पूरा नितनेम भी करदा सी और सुखमनी साहब दे 2 पाठ करदा सी, सवेरे भी करदा सी, शामी भी करदा सी। और एक दिन ज़ारो ज़ार रोया, कहंदा ज्ञानी जी की करिए, वासना ते नहीं मिटदी, शरीर ते मिटण नूं आ गया, शरीर ते मिटण नूं आ गया। कोई ढेले रहन लग पे सन, कहने के शरीर ते मिटण नूं आ गया, वासना ते नहीं मिटी। ते तुसी कहंदे वासना है तो फिर जन्म हो जाएगा। तो कहंदा जिन्ना पौड़ियां चों मैं लंघां फिर लंघांगा। इस वास्ते भारत दे सब तो वड्डा दुख मनदे ने जन्म ते मरण। जन्म हो गया है तो हुण दुखां दा मूल ते बच गया, हुण सारे दुख भोगेगा।
बार बार दा जमना मरना इसे नूं दोजक मन्निया, इसे नूं नरक मन्निया। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं एक उदाहरण देना हुंदा, वो भी तुहाडे सामने रखदे हां। एक बच्चा पहली तो दूजी तीजी चौथी पंजवीं प्राइमरी स्कूल पास करके हाई च गया, ते अज जद 10वीं दे च बैठा ते उन्होंने कही हुण तू पहली च बैठ, जिहड़ियां किताबां पढ़ चुके हैं फिर पढ़, जिन्हां क्लासां चों लंघ चुके हैं फिर लंघ, जिहड़े मकोड़े तो मार चुके हैं फिर मार। ये तो बहुत वड्डा दुख होवेगा। जिहड़ियां किताबां पढ़ चुके हैं फिर पढ़े, जिन्हां क्लासां चों लंघ चुके हैं फिर लंघे। मनुख दा जन्म होया है, मासूम बच्चा है, मां दी पिता दी गोद विच है, फिर सहजे सहजे वड्डा होया है, खिडौणियां दी खेड है, फिर सहजे सहजे होर वड्डा हो रहा है, स्कूल दी पढ़ाई लिखाई है, फिर होर वड्डा होया, जवान होया, विआह होया, बाल बच्चे हुए ने, कम धंधियां दे च प्रवृत्त होया, सहजे सहजे बुढ़ा होया, ते अज इनू कहीए तू मर के फिर यही कुछ करेगा। अज मरण लग्या उन्हों कहीए फिर तेरा जन्म होवेगा, तू फिर खिडौणियां नाल खेडेगा, तू फिर स्कूले पढ़ने जावेगा, तेरा फिर विआह होवेगा, तू फिर कम धंधियां दे च प्रवृत्त होवेगा, तो फिर बाल बच्चों की पालना करेगा, तो फिर तू दुख सुख करके बुढ़ा होवेगा, फिर तू मरेगा, फिर तेरा जन्म होगा। ये तो जो कर चुके हैं फिर करिए, जितों लंघ चुके हैं फिर लंघिए। पर वासना करके ऐसा होता है। जुग जुग मेर शरीर का, भाई साहब भाई गुरदास जी, जुग जुग मेर शरीर का, वासना बद्दा आवे जाए। वासना उसदी आउंदी है जो नहीं है, जो हुण भी नहीं है। तो दुनिया दे तुसी एक मनुख का भी जिक्र नहीं कर सकते जो कह देवे सब कुछ है मेरे को, नहीं, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो नहीं है, ताई ते वासना है। जिन्ने चिर तक मनुख अकाल विच नहीं जाता, कुछ ना कुछ नहीं है, वासना उस पासे जाएगी। ते वासना दे एक 3 केंद्र, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। ये वासना सीमा तो अगे चली जाए, चाहे अहंकार वासना है, चाहे लोभ वासना है, ते चाहे काम वासना है, मनुख पागल हो जाता है। सियाणे कहते ने हिटलर पागल सी, वरना 2.5 करोड़ बंदियां नूं मनुख का कतल नहीं कर सकता, इन्ने बंदे उसने मारे ने। अहंकार वासना इतनी वध गई, इतनी वध गई, दूजे नूं कबूल करना ही औखा हो गया। अहंकार का मतलब कि आहंग, मैं हां, तू की है, तू कुछ भी नहीं है, तू मेरे सामने होया गर्दन उड़ा देगा। अहंकार वासना। सियाणे लोग कहते चगेज खां, हलाकू, बाबर, हिटलर, मौसे तुंग पागल सन। ये गल वखरी है। वासना ग्रसे लोग पागल नहीं आखणगे। जिन्होंने थोड़ी जिहा वर्तमान या अकाल की झलक पई है, वो कहते ने लोग पागल ने। पागल है औरंगजेब, हद हो गई, 3 भरा मार देते, क्योंकि देखिए ये मेरी बराबरी कर सकते हैं, शरीक ने। फिर देखे बुढ़ा प्यो, ये जिन्ने चिर तक जिंदा है तख्त नहीं मिलेगा, उन्होंने जेल च पाया। फिर जहां आ रहा वड्डी भैन, वो दारे का पक्ष लैंदी सी, दूजे भरा का पक्ष लैंदी सी, औरंगजेब का पक्ष नहीं लैंदी सी। औरंगजेब नूं ते गालां कढदी सी, औरंगजेब नूं कहंदी सी तू मूढ़ है, तू दुष्ट है, तू कठोर है। उन्होंने केसां तो धरू के आगरे विच उसे किले च बंद किया जिथे शाहजहां बंद सी। 7 साल वड्डी भैन औरंगजेब की जेल विच रही है। सियाणे मनुख कहंदे ने पागल सी। सरमद जैसा सूफी फकीर कतल होया। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज शहीद होए इसे दे राजकाल दे विच। शायद आप दी नज़रां च गुजरी होवे,
हिंद के औलिया व अकराम एक किताब है। कुछ तो कहते ने सारे ख्याल अब्दुल कलाम आजाद दे सन। उस किताब दे जो सन 47 आजाद हिंदुस्तान का पहला विद्या मंत्री बनाया गया, एजुकेशनल मिनिस्टर बनाया गया, अब्दुल कलाम आजाद। हिंद के औलिया व अकराम, हिंदुस्तान दे जेड़े फकीर ते संत पैदा होए ने, उन्हां दी जीवन कथा, उन्हां दे विचार, उन्हां दी फिलोसफी, उन्हां दी तर्ज़े जिंदगी छोटे छोटे रूप बयान की गई है। उस दे गुरु नानक देव जी का भी जिक्र है, गुरु गोबिंद सिंह जी का, हजरत निजामुद्दीन का भी जिक्र है और स्वामी महावीर का, महात्मा बुद्ध का भी। हिंद के औलिया व अकराम फारसी नुमा उर्दू दे च है ये किताब। ये अब्दुल कलाम आजाद कहंदा है, उर्दू दे जेड़े अखर लिखे हुए ने, हो सकता है ऐ औरंगजेब खुदावन ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर सरमद जैसे सूफी संत का कत्ल नाकाबिले माफ है। ये लफ्ज ने उथे इहदी कबर जामा मस्जिद दे कोल बनी हुई है। हुण ते सारा दिन मुसलमान फुल चढ़ाते ने, चादरां चढ़ाते ने। इनू कत्ल कर दिता सी लाल किले दे औरंगजेब ने अपनी अखां दे सामने। ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर गुरु तेग बहादुर साहब त्याग वैराग, बैराग की मूर्ति का कत्ल नाकाबिले माफ है। गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों बारे भी लिख सकता सी। चलो उसने अपनी कलम नूं संकोच दिता है, अनेकां कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी औरंगजेब नूं आख्या पागल है तू। वह भी कहंदा पागल है। प्रभुता दी वासना इतनी वध गई डुब गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हम दे खां तैं डुबे आले, मैं देखदा सारे ही मनुख डुबे पे ने। कोई लोभ वासना दे, कोई हंकार वासना दे, कोई काम वासना दे डुबे पे ने। हम दे खां तैं डुबे आले। गुरु नानक एक होर नुकता भी थोड़े दृष्टिगोचर मैं करा। मैं देखदा पानी दे कुत्ते तैरदे ने, बिल्लियां तैरदियां ने, चीते तैरदे ने, गौवां तैरदियां ने, मज्जां तैरदियां ने, घोड़े तैरदे ने, गजब दी गल हाथी तैरदे ने। बड़ा भारी भरकम हाथी मैं तैरदा होया देख के दंग रह गया सी। मैं कहा हद हो गई, पहाड़ जैसा शरीर ते तैरदा है, पानी दे डुबदा नहीं है। 30 फुट पानी सी, गहरा नहा रहा है, तैर रहा है, खुश है बड़ा, हाथी डुबदा नहीं है। हाथी तैरदे ने, कुत्ते तैरदे ने, घोड़े तैरदे ने, मज्जां तैरदियां ने, गौवां तैरदियां ने, बंदे डुबदे ने, मनुख डुब जांदे ने। कारण मनुख भी जीवदे डुबदे ने, मुर्दे नहीं डुबदे। मुर्दे ते तैरदे ने, मरे हुए ते तैरदे ने, जिंदा डुब जांदे ने। जिंदा मनुख डुब जांदा है, अपना संतुलन गवा बैठता है, बैलेंस बिगाड़ बैठता है। क्यों बिगड़ता है? इसका बैलेंस अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना इतनी वधी हुई है, उहदे च इसका संतुलन डावाडोल हो जाता है, डुब जाता है। हम दे खां तैं डुबे हले, ते डुबे दी पहचान की होवेगी? औखे ना होना, माफी मैं पहले मंग लिया। नितनेम उसका डुब गया होवेगा, नहीं करता होवेगा। सिखी डुब गई होवेगी, गुरु का अमृत डुब गया होवेगा, अमृत वेला डुब गया होवेगा, बाणी का पाठ डुब गया होवेगा, गुरमंत्र का जप डुब गया होवेगा, नहीं होवेगा तो डुबया होया।
हम दे खां तैं डुबे वाले डुबे तुसीं देख सकते हो, सारी दुनिया देख सकते हो, हर मजहब दे देख सकते हो। डुबे पए ने क्रिश्चन, डुबे पए ने हिंदू, डुबे पए ने सिख, डुबे पए ने मुसलमान। अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना, इज्जत सीमा तो अगे वधदी है, मनुख पागल हो जाता है, डुब जाता है, संतुलन खो बैठता है, तवाजन खो बैठता है। भयो लोभ संग होरा, पदार्थां दी वासना, इनू लोभ कहंदे ने, लोभ वासना। महाराज कहंदे ने ते इस तरह हो गया जिवें हलकाया हौरा, हल्का कुत्ता, पागल कुत्ता। क्यों कू कर हर काया, दावे दैद सजाए, लोभी जंत न जानी, पख अबख सब खाए। पयो लोभ संग होरा, लोभ ने हल्का कर देता है, पागल कर देता है। पागल कुत्ते नूं कहंदे ने हल्का हो गया, हलकाया कुत्ता कहंदे ने, हल्का हो गया। ते हलकाया कुत्ता अपने मालिक नूं भी कटदा है, दूजियां नूं ते कटदा है, जिन्हें पालिया होवे, जिन्हें रखिया होवे, उन्होंने भी कटदा है, उन्होंने भी नहीं छोड़ता। पयो लोभ संग होरा, एक दफा मनुख लोभ नाल हलकाया हो जाए, फिर भरा की है ते प्यो की है, वो किसी नूं भी धोखा देगा, कोई भरोसा नहीं। इते भरा नाल भी वधीकी करेगा, प्यो नाल भी वधीकी करेगा, सब नाल करेगा, गुरु नाल भी करेगा। कहंदे ने जद साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पटना तो तैयारी कर ली, मैं जाना है, बालक रूप जाना है मैं, ते माता जी समझाते ने, मामा कृपाल चंद समझाते ने, गुरुदेव आ जान, आसाम गए हुए ने गुरुदेव पिता, फिर बैठ के फैसला करांगे। इत्थे लोग इतनी सेवा करते हैं, इतना प्यार करते हैं। एक गुरु प्रताप सूरज दे च लंबी चौड़ी कथा लिखी हुई है, मैं हुण संकोच करदा अगे बयान ना करा, क्योंकि उस इलाके का पोल खुलदा है गुरु प्रताप सूरज दे। सतगुरां ने 7 तोले सोना दिता सी, बई पालकी बनाओ, उपर सोने का पतरा लाना। और मामा कृपाल चंद नूं कहण लगे 7 तोले ते ऐ लो, बाकी इकट्ठा करो, घट तो घट 100 तोला होना चाहिए। ये कवि संतोख सिंह जी ने लंबा चौड़ा प्रसंग लिखे। खैर 200 तोले इकट्ठे हुए, पालकी बन के भी आ गई। ते जो बन के आई ना, ते महाराज जी कहते किन्ना क सोना है, 200 तोला। सतगुरु ने लकड़ां कट्ठियां कीतियां इस तरह जिवें चिता सजाई दी, दे उत्ते उपर रखी बालकी, ते फिर अग ला दिती। हुण सारे हैरान, इन्नी कीमती पालकी, इतनी सोहनी पालकी, 200 तोले सोना, अग ते रख दिती है। जलन तो बाद क्योंकि अग काफी, ते महाराज कहने को लभो सोना किन्ना है, 7 तोले सोना इन्ना ही सी। गुरु नाल धोखा, गुरु नाल धोखा। भयो लोभ संग होरा, मनुख नूं जद लोभ हलकाया कर देवे, भरा नूं धोखा देंदा है, प्यो नूं धोखा देंदा है, गुरु नूं भी धोखा देंदा है। मसंदा ने भी इस तरह ही कीता सी, ये भी मैं अर्ज करदे हां। भयो लोभ संग होरा, ते फ्राइड ते इंज कह गया है, बहुत सारे काम वासना करके हल्के हुए ने, पागल हुए ने, संतुलन गवा बैठे ने। चाणक कहंदा है, बहुते प्रभुता करके, हंकार वासना करके पागल हुए ने, क्योंकि महान जालम हो जाएगा वो बंदा। अहंकार वासना, प्रभुता दी वासना, ਉਹਦੇ ਲਈ 2.5 करोड़ बंदे मारने इंज ने जिवें गाजर मूली कटने। ये तो पागलपना हो गया।
ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਤਾ, ਹੰਕਾਰ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਿਰਧ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਰਾ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਆਣ ਦੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਆਣ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਪੁੰਨ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ? ਇਹ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਧਰੇ ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਧਰਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਪਾਪ, ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਈ। ਤੀਰਥ ਬਰਤਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ में ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ ਹੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਦਾਨੀ, ਇਤਨਾ ਗਿਆਨੀ, ਇਤਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੁੰਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਹਿਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪੁੰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ? ਅਕਰਮ ਨਾਲ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੈ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਬੈਸਨੋਂ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਜੈਸੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧੜਕਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਈ ਲੇਖੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਕਾਹਦਾ? ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਵਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ।
कबीर कहते साडा जन्म हुण कानू होवेगा, असीं ते राम हो गए, असीं ते परमात्मा हो गए, बूंद ते सागर हो गई है, सागर दे च लीन हो गई है, साडा कोई जन्म नहीं। बहुर हम काहे आवेंगे, जीवदियां जी इस गल की समझ पै जाती है अगला जन्म नहीं होवेगा जीवदियां जी। क्यों? जीवन की लालसा नहीं रह जाती, मरण का भय नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था कबीर दी बन गई सी, तां वो कह रहे ने बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म ते सेका, हुक्मे बोझ समावेंगे। असी हुक्मी दे च लीन हो गए हैं, जिहदे हुक्म दे नाल जन्म मरण चलता है, उस च लीन हो गए, गल खत्म। असी मुड़ के नहीं आवना, साडा कोई जन्म नहीं, असी मुड़ के नहीं आवना। बहुर हम काहे आवेंगे, नहीं आवना। अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, बदत लोचन ते नर मुक्ता। तो मुक्त हो गए। मुक्ति का दी है? जन्म तो मुक्ति, मरण तो मुक्ति, आजादी। जन्म बंधन है, अगर जन्म हो गया तो पता नहीं कितने दुखों तो लंघना पड़ेगा, कितने क्लेश तो लंघना पड़ेगा, कितने उतार चढ़ाव तो लंघना पड़ेगा, कितने नफे नुकसान तो लंघना पड़ेगा, तो लंघना पड़ेगा। जन्म हो गया, मरण तो भी लंघना होगा, जन्म हो गया है तो दुख सुख तो भी लंघना होगा। और वासना है, लोभ वासना, काम वासना, अहंकार वासना, ये जन्म भी चलता रहेगा, मरण भी चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। अंतरीव तीरथ दे च ओही प्रवेश करता है जो वासना दे बहुत छोटे भाग दे च आ जाए, एकदम दे च, एक सैकंड दे च। एकदम एक सैकंड है तो यही वर्तमान है। तो एकदम दे च मनुख लंबी चौड़ी वासना नहीं कर सकता। एकदम दे च मनुख की करेगा? एकदम दे च ही ये सारे महामंत्र उच्चारण हो जाते हैं। मैं फिर अर्ज करा, वाहिगुरु इको ही दम चाहिए। ओम इको ही दम दे उच्चारण हो जाता है, अल्लाहो इको ही दम दे उच्चारण हो जाता है। एक दफा दा आख्या होया वाहिगुरु, वाहिगुरु बना देंदा है मनुख नूं, सारे पाप धो देंदा है, अकाल दे प्रवेश करा देंदा है। बशर्ते जद ये वाहिगुरु आख रहा है तो मन भी उत्थे ही हो जाए, उसे एक छिन दे च आ जाए, एक दम दे च आ जाए। एक चित जाए एक छिन ते आयो, काल फास के बीच ना आयो, यही अंतरीव तीरथ है। और ना किधर समझ लेना किसी शहर दे ते इस तरह का तीरथ बनया होएगा, उत्थे जावांगे तो पाप धुल जाणगे। साहब कहते नहीं, ये बाहर जितने तीरथ ने, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मन। थोड़ा जिहा मान सन्मान मिल जाता है, थोड़ी जिहा दुनियावी सहूलतां मिल सकदियां, इस तो परम आनंद नहीं मिलता, ते पाप भी नहीं धुलते। जे को पावे तिलका मान, तो वो अंतरीव तीर्थ वास्तविक ही है। सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मलना। जबान उच्चारण करे वाहिगुरु, हुण मन पूरी एकाग्रता नाल सुने, ते तां ही सुनेगा जे ये भूतकाल दीयां यादां दे च ना होवे ते भविष्य दी चिंता दे च ना होवे। जे गुजरे हुए समय दीयां यादां दे च मन पिया, जबान वाहिगुरु वाहिगुरु करदी पई है, तोता रटने कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करदे हां। अष्टावक्र दे बारे ऐसी कथा है, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਬਲ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਝਲਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੜੇ ਸਨ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੀ, ਜਨਕ ਦਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਬਣੇ ਰਾਜਗੁਰੂ। ਇਹ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਲਾਇਆ।
हरि ओम ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਤੇ ਭਵਿਸ਼ ਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਰੀ ਓਮ ਹਰੀ ਓਮ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, 2 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਗਾਲਬਨ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪੈਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਖੜੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਚ ਜਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਨਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਰਬੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। लेकिन पहाड़ां जैसे उच्चे प्रश्न रखे ने जनक ने अष्टावकर दे अगों, और अष्टावकर ने हल कीते ने। खुशकिस्मती है, अज इन्हां ग्रंथां दे हिंदी अनुवाद मिलते हैं, इंग्लिश दे भी मिलते हैं, और पढ़ के हैरानगी आउंदी, इस तरह के कोई सवाल करता है, इन्ने उच्चे उच्चे, और फिर इतने उच्चे उच्चे जवाब दिते जाते हैं। साहिब ते कह रहे ने, एक चित जै एक छिन दे आयो, काल फास के बीच न आयो। एक छिन दे अष्टावकर दा पिता नहीं सी, प्यो नूं भी कह दिता सी, की तोता रटन लाया है रोज रोज, सारे परिवार नूं औखा करना, सारे दी नींद हराम करनी, तोता रटन लाया है। अष्टावकर, ये तोता रटन लाना है तो सौ जाओ, बाकियां नूं आराम करन दिओ। ये अष्टावकर ने बोल आखे हिम्मत करके, ये तोता रटन है, ये नाल की होना है, कुछ भी नहीं होना। एक चित जाए एक छिन दे आयो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, एक छिन एक सैकंड विच इक्को ही दफा मनुख वाहिगुरू कह सकता है, कि एक दफा दा वाहिगुरू आख्या होया करोड़ां पाप धो देंदा है, करोड़ां दुख मिटा देंदा है। करोड़ दफा दा वाहिगुरू आख्या होया एक पाप भी नहीं मिटांदा। ये भी महर्ज करा, सारी सारी रात लोकी वाहिगुरू वाहिगुरू करते रहते ने, सारी जिंदगी पाठ पढ़ते रहते ने, पाप तो एक भी नहीं धुलदा। एक दफा वाहिगुरू आखदियां सारे पाप धुल जाते हैं, सारे दुख भी मिट जाते हैं। मैं अर्ज करा, इतनी मैनू समझ आई है, एक सैकंड दे चाणा बहुत औखा है, कठिन है, इतनी समझ आई है कठिन है, क्योंकि दुख मेरे को भी मौजूद ने, रोग मेरे को भी मौजूद ने, परेशान मैं भी, पर इतनी समझ मैनू आ गई है। एक सैकंड दे आए बिना दुख नहीं मिटते, पाप नहीं मिटते, क्लेश नहीं मिटते। ये धार्मिक समझ है। इसे नूं अष्टावकर ने कह दिता सी अपने बुढ़े प्यो नूं, ये की तोता रटन लाया है।
ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਚਲੋ ਇਸਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਫਾ ਓਮ ਓਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੋਲ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਸਦਾਏ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਨੇ ਗਾਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸੀ ਮਨੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਣਗਹਿਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ। ਜਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਉੱਚੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੀ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ? ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ, 60 ਸਾਲ ਦੇ, 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ, ਪ੍ਰੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਡਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ। ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ तो फिर प्रश्न ਤੇ कुछ महान होना चाहिए, ਉੱਚਾ होना चाहिए। तो खैर लमकाइए ना। साहब कहते ने सुनिए मनीए मन कीता भाव। सुनना कि सुने ਉਹਨੂੰ मन का हिस्सा बनाना, भाव सुने होया मन दे जावे। मनन जबान जो बोली है मन ते रसना एक हो जाए। जबान बोले तो मन सुने। फिर एक जगत का जन्म आउंदा है। ये सुनना ते मनना कर देंदा है कि भाव, एक प्यार की दुनिया, विचार खत्म हो जाते हैं, निर्विचार अवस्था। एक रब्बी प्रेम की दुनिया, भावना की दुनिया, शरदा की दुनिया। तो मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, भरोसे टुट सकते हैं। किसी की गल सुन के गुरु ते भरोसा आया, टुट सकता है। कथा कीर्तन सुन के भरोसा आ गया है, टुट सकता है। श्रद्धा आ गई है कि श्रद्धा तो उदों बनती है जब सुनिया होया मन का हिस्सा बन जाए। जबान ते मन एक हो जान तो फिर जो खेड बनती है वह श्रद्धा है, वह भावना है। अंतरगत तीरथ मन लाओ, ये श्रद्धा अंतरीव तीरथ है। ये भावना अंतरीव तीरथ है, सारे पाप धो देगी। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। रविदास, भाव तो बिना भक्ति का दी। जिस दिन भावना का जन्म होता है उसे दिन ही भगत का जन्म होता है। भावना के नाल ही भगत पैदा होता है। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसे दिन ही मां का जन्म होता है। उस तो पहले एक स्त्री है, मां नहीं है। बच्चे का जन्म होया, हुण मां का भी जन्म होया है। भावना का जन्म होया, हुण भगत का जन्म होया है। इस तो पहले भगत नहीं सी, भावना ही नहीं तो भगत केड़ी गल दा। बच्चे का जन्म ही नहीं होया, स्त्री है, मां नहीं है। बच्चे का जन्म होया है तो हुण दोवां का जन्म होया, मां का भी जन्म होया। भावना का जन्म हो गया, हुण भगत का जन्म हो गया। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल लाओ। यही अंतरीव तीरथ है और इहदे च ही सारी मैल धुल जाती है। यही सच्चा इशनान है, यही असली तीरथ है। हाँ जी, सब गुण तेरे में नाही कोई। इस तरह के इशनान तो बाद
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋਲੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਮਿਟ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਨਣੇ ਚੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਸਵਸਤਾਤ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾਓ, ਜੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰਨੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਸਤ ਹੈ, ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਅੱਜ ਨੇ, ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਲ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਬੋਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇ ਇਹ ਬੋਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨੇ? ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਪੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਹਰ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਨਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਸਮ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਉਦੋਂ ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ? ਜਦ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਝ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋਈ, ਖਦੀਜਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਧੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੰਬੜੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਇਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਖਦੀਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਕਦੀ। ਇਹ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬੋਲ ਖੁਦਾਈ ਨੇ। तो मोहम्मद साहब कहने वाकई तू ठीक पकड़ की थी, मैं तो चुप कर गया, मैं तो बिल्कुल खामोश हो गया, पता नहीं खुदा की बोलता है। हो आपो बोल न जानदा हो कहा सब हुक्म आओ जियो। गुरु नानक देव जी कहते इस तरह का बोलना, इस तरह का कहना तो मैं जानता ही नहीं, मैनू पता ही नहीं, पता नहीं खसम की बोले, पता नहीं परमात्मा की बोले। ये बोल कतई पुराने नहीं होंगे, सदा नवे बने रहंदे, सदा गहराई बनी रहंदी है।
अगर कोई इन्हां नूं जपे, जप मन मेरे गोबिंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखाणी। इस तरह की जिहड़ी बाणी है, सत सुहान सदा मन चाओ, सदीवी है, अमर है और अत्यंत सुंदर है और आनंद स्वरूप है। सदीवी खेड़ा है उसदे च, सदीवी रस है। हाँ जी। कवण सवेला वक्त कवण, कवण थित कवण वार। इत्थे सतगुरुदेव जी महाराज ख्याल की धारा नूं बदलदे ने कि अगर ऐसी अवस्था भी किसी की बन गई है, बूंद सागर दे च भी लीन हो गई है, सतचित आनंद भी कोई हो गया है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हुण परमात्मा की वो पूरी महिमा बखान कर सकता है और उसकी सारी होंद का जिक्र कर सकता है। साहिब कहते ने अगर किसी ग्रंथां च इस तरह के लेख हैं, इस तरह का लिखिया होया कोई लेख मिलता है, उसके अपने दिमागी होणगे, वो अनुभव प्रकाश नहीं है। साहिब जो कुछ इत्थे कह रहे ने पढ़ना। हाँ जी। कवण सवेला वक्त कवण, कवण थित कवण वार। दिन केड़ा सी, रात केड़ी सी, समा केड़ा सी, महीना केड़ा सी, केड़ी थित सी, केड़ी रुत सी। हाँ जी। कवण से रुति माहो कवण, जित हो आया का। महीना केड़ा सी, रुत केड़ी सी, जदों ये आकार होया है। क्योंकि संसार होया है, इहदे उत्ते बड़ियां विचारां ने, बड़ा कुछ है। ते समा कोई किवें लिखेगा? समा तो है ही नहीं सी, सूरज तो है ही नहीं सी, ते सूरज दे नाल समा है, ते जद सूरज ही नहीं सी ते कोई समा लिखेगा, गलत लिख देगा, अंदाजे लाएगा, गलत लाएगा। साहिब इत्थे कहंदे ने जित होवा आकार, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਲ ਨ ਪਾਇਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਾਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਪੰਡਤ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਮਹੀਨਾ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕੁਟੰਬ ਸਾਥ ਵਰਦਾਤਾ, ब्रह्मा भालन श्रेष्ठ गया। गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक, ब्रह्मे ने पहले कोशिश की थी, मैं देखदा कि जगत की रचना कदों हुई ते किवें हुई। आगे अंत न पायो तांका कंस छेद क्या वड़िया पया। आखिर ब्रह्मे की जबान तो निकलिया नेति नेति, भाव बेअंत है, बेअंत है। जो कुछ मैं लभ्या है ये अंत नहीं है, नेति नहीं है, नहीं है, भाव अंत नहीं लभ सकता, मैं नहीं लभ सकता, वो बेअंत है, बेअंत है। साहिब कहते ने अगर इस तरह की रुत, महीना ते उत्पत्ति के कारण किधरे पंडितां नूं मिले होंदे ते पुराणां दे च लेख होंदे, उपनिषदां दे च होंदे, वेदां दे च होंदे। वक्त न पायो कादियां जे लिखण लेख कुरान। उस समय की पकड़ काजियां नूं भी नहीं आई, इस्लाम दे बानी नूं भी नहीं आई, नहीं तो कुरान विच इस तरह का लेख होना चाहिए सी, जबकि नहीं है। हाँ जी। एतवार ना जोगी जाना रुत माओ ना कोई। बड़े तो बड़े जोगी मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ वो भी नहीं जानते ये सिरजना कदों हुई, किवें हुई और किस हिसाब किताब दे नाल हुई। वरना इन्हां दे जोग मत दे ग्रंथां विच इस तरह के लेख होने चाहिए सन, इस तरह के बोल होने चाहिए सन। जां करता सेठी को साजे आपे जाने सोई। जिन्हां कारना करके ते जदों सृष्टि साजी उस करते पुरख ने ब्रह्मंड की साजना की, वो आप ही जानदा, और कोई नहीं जानता। कोई सही अंदाजा नहीं दस सकता, कोई उस बेअंत दी, इस लीला दी अंत ते बुनियाद नहीं लभ सकता। हाँ जी। क्यों कर आखा क्यों सालाई, क्यों वर्णी क्यों जाना। साहिब कहते ने किस तरह बयान करिए ते किवें जाणीए। भावें यतन ते हर सियाणे तो सियाणे मनुख ने कीते ने, पर बयान किस तरह करन, वर्णन किस तरह करन, लिखन किस तरह, क्योंकि अंत हथ दे च नहीं आया, बेअंत है, बेअंत है। हाँ जी। नानक आखण सबको आखा एक दू एक सियाणा। उन बड़े तो बड़े सियाणे हुए ने, एक तो एक हुए ने, अगे तो अगे हुए ने, कोशिश भी की है, विख्यान भी कीते ने,
लेकिन फिर आखिया यही है बेअंत है, अंत नहीं पा सकते। हाँ जी। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾ ਹੋਵੇ। वो महान है, उसकी महिमा महान है, और जितना महान है उसका कीता होया भी उतना ही महान है। कि जे उसकी नाप तोल या किसी होर पैमाने नाल नापना औखा है, उसकी कृत नूं भी नहीं नापिया जा सकता। उसने की कुछ बनाया है, किवें नापीए, किवें तोलीए, किवें उसकी जो है गिनती करिए। भाव करते दी कृत भी बेअंत है, अनंत है। हाँ जी। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ ਅਗੇ ਗਿਆਨ ਸੋ ਹੈ। अगर कोई दावा करे कि मैं जानदा, कोई साइंटिस्ट, कोई विज्ञानक ये दावा करे कि मैं जानदा, ये दावा उसका झूठ होवेगा और अगे शोभा भी नहीं पाएगा। अपनी जिंदगी, अपना जन्म ख्वारी विच व्यतीत करेगा। भाव ये अंत कोई भी नहीं पा सकता, बेअंत है। कथाकारां ने इहदे उत्ते एक छोटी जी कथा लिखी, कह के मैं समाप्ति करदे हां। कहंदे ने नमक दीयां छोटियां छोटियां डलियां बहस कर रही सन, सागर इतना है, सागर इतना है, सागर इतना है। चर्चा चल रही सी। पंचदशी के करते ने कहानी लिखी है। आखिर नमक दी एक डली कहन लगी, आपस में जो असी बहस मुबासा कर रहे हैं तो किसी नतीजे ते नहीं पहुंचे। मैं जांदी हां सागर दे ते मैं वापस आके दसांगी सागर किन्ना क है। पंचदशी का करता लिखदा है, मुद्दतां हो गई, जुग लंघ गए ने, वो नमक दीयां डलियां उड़ीक पईयां करदियां ने, वो आवे ते सानू दसे सागर किन्ना क है, सागर किन्ना क है। जेड़ा भी उसका अंत पाण गया बेअंत दे च लीन हो गया, अंत कहण जोगा नहीं रहा, बिस्माद हो गया। और उसने साफ कह देता, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए, बिसम बिसम बिस्मे ही भइए, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। तो साहब इत्थे कहंदे ने भावना जिथे अंकित हो गई, भगत प्रभु विच लीन हो गया, लेकिन अंत वो भी नहीं पा सकेगा, पूरा बयान वो भी नहीं कर सकेगा। आनंद माणेगा, रस माणेगा, जन्म मरण तो रहत हो गया, लेकिन आखे हुण मैं गिणती मिणती करके सारा पसारा बयान करा। साहब कहंदे नहीं कि अज तक भगतां ने सारा पसारा बयान कीता हुंदा, किसी धर्म ग्रंथ दे च नहीं है। इस तरह की गिणती मिणती किसी धर्म ग्रंथ दे च नहीं है। इस तरह की गिणती मिणती किसी अवतार ने बयान नहीं की, किसी भगत ने बयान नहीं की। तो ये पौड़ी इत्थे समाप्त होंदी है। अद की मैं बहुत पौड़ियां दी विचार नहीं कर सकिया। इस पौड़ी ने काफ़ी दिन मैनू रोकी रखे, तो लफ्ज़ मैं फिर दोहरांदा पिया। जो मनुख काल विच जी रहा है, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, पुन भी करता रहेगा, तो जितने पुन करेगा उतने ही नाल पाप करता रहेगा। सच भी बोलता रहेगा, झूठ भी बोलता रहेगा, सत्संग भी करता रहेगा, कुसंगत भी करता रहेगा, दान भी देता रहेगा, बेईमानी भी करता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। जिन्ने चिर तक ये अकाल दे च नहीं आउंदा, ये पुनीत नहीं आउंदा, ये भगत नहीं बनता। ते काल तो अकाल दे च आउण दा द्वार है वर्तमान, समय का एक छोटा भाग। और जिहड़ा इत्थे आ जाए फिर उम्मीद है ये हुण उत्थे पहुंच सकता है जिथे समा नहीं है, जिहदे च वक्त नहीं है। छोटी छोटी घटनावां कदी घटदियां ने जिंदगी। कोई संगीत की धुन सुनदियां सुनदियां घंटा इंज लंघ गया जिवें 1 मिनट। कोई कविता, कोई रस विच ऐसे डुबे दिन इस तरह लंघ गया जिवें 5 मिनट। जिस समा छोटा हो सकता है, समा मिट सकता है। जे काल छोटा हो सकता है, काल खत्म हो सकता है। और जिथे काल नहीं, उस महा आनंद दे समा नहीं है, काल नहीं है। इस वास्ते उन्होंने कहा अकाल। काल ते जाल है, समा ते जाल है, और समा ते बोझ है। काल जाल जम जो ना साके, सच का फंथा थाटे हो। जितने चिर तक मनुख काल दे च जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा, ये चलता रहेगा।
बुनियादी नुकता दास ने आप जी के सामने बयान करके रख दिता है। और यह भी ठीक कठिन है, औखा है। ये कथा कर लेनी कोई इतनी औखी नहीं, तो सुन लेनी भी औखी नहीं। सारी सारी रात कीर्तन कर लेना भी कोई औखा नहीं। तो मैं ऐसे पाठी भी देखे ने जो 18-18 घंटे पाठ रोज कर रहे हैं इंडिया दे, ऐसे देखे ने मैं 18-18 घंटे पाठ। ये सब कुछ सरीरक मेहनत है। एक सैकंड दे आ जाना, एक दम दे आ जाना, वर्तमान दे आ जाना कठिन है, क्योंकि वर्तमान दे आया होया मनुख अकाल दे नेड़े आ गया है और अकाल दे लीन हो जाएगा। साहिब रहमत करन, कथा सुन के ते कथा सुना के तुहाडे पल्ले पै, मेरे पल्ले पै, और इसे जीवन दे असी अकाल दे लीन हो सकीए ताकि जन्म मरण के जंजाल तो बच सकीए। इतनी सेवा प्रवान करने जो कुछ गुरु ने समझ दी सी तुझ बुद्धि अनुसार दास थोड़े सामने रखता रहा। फिर जिंदगी रही, सेहत रही। अगले साल जून जुलाई दे थोड़े दर्शन करांगे। एक हफ्ते का समा दास ने इत्थे लॉन्ग आइलैंड गुरुद्वारे दिता है, तो कल तो दास ने उत्थे हाजरी भरनी है। इस तो बाद दास ने इंडिया वापस चले जाना है, क्योंकि फिर अक्तूबर का सारा महीना दास ने दरबार साहब हाजरी भरनी होंदी है। मैं सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद करदा, मुखी सजना का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। ते हर साल जो याद करा देंदे ने फोन करके सेठी साहब, इन्हां दा भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद। साहिब रहमत करन, सारियां दा शौक बनाई रखन, रस बनाई रखन, ताकि इसे जीवन विच अकाल की झलक प्राप्त हो सके। बार बार शुकराना धन्यवाद करदे होया आप तो क्षमा की याचना ते फतेह दास की प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा।